major vertical in our this society or this foundation, and if we do it, then what are we going to do? So basically, what we should be looking at is what people really need in this city, what is available, what is a gap, how can it be filled, if the policies needs to be changed or improved. I think these are the areas where we should be making some contributions. So I'm going to talk about we are planning to have in BIC a medical vertical. So what this medical vertical is, that it is on top of all the medical bodies. We are not any association of doctors or healthcare workers, but we are group of professionals and intellectuals from the civil society who will take up the burning issues of healthcare locally and try to look for the gaps and gaps in the policies and infrastructure, and try to find a amicable solution which we can recommend to government and political bodies. So that is probably what we would be doing is in this medical vertical. And as I said, we are not even a patient forum where we are going to find out faults in the healthcare sector. We are going to aggregate all the medical activities, all the medical infrastructure. We will aggregate all the information about the medical activities and medical facilities in Bhopal, so that at least there is some data, some register where everything is documented. Our aim should be, as we just discussed, wellness for life, and second should be a holistic approach. The approach towards health has to be holistic, because India is one country where so many different types of medicine are practiced, and but there is no scientific. We have not proved scientifically a lot of Indian systems of medicine, and that is why people don't believe on it, and mainly the West. And we all know that in preventive medicine and in chronic diseases, Indian medical system scores over allopathy. And this is where actually government also felt when there was this pandemic that they were lacking any information, any complete information about healthcare services in their state, in their city, in their country. So we would prepare those data, we will integrate them, and then we will probably give it to the appropriate authorities, and we will have ready reckoner registers with us for our references also. We are not a political body, but we will give input to all the political bodies, because we want that whenever they can support the right cause, they would be able to do it. Next. So we are basically, as I said, a group of professionals and intellectuals, and we will we will have the doable inputs. We will try to give an amicable solution rather than the theoretical solutions. We will give practical solutions, what can be done easily to improve the healthcare infrastructure in Bhopal. We can also be used as a think tank by the authorities once we have made our position in the society and among the political bodies and authorities, that they might use us as a think tank also. And we will, as there will be doctors also, or I would say at least 35-40% doctors would be invited for whenever we will have such a forum on a medical vertical. Then we will also know the best practices, what are the practices in various fields in the city. Next. So as Shashi has already said, we are not a club, we are not a pub, we are not a professional body, and we are not doing routine stuff. We are trying to really just find out the gaps and give an amicable solution. Yes, we are not for profit, and we are not here for self-promotion. We don't want to promote
an individual. We want to promote the philosophy, the knowledge, the intellect. It is not for self-service and not for networking, and obviously not for pubbing. Thank you. So how we can do that? Bhopal does not have any Ayurvedic spa, like there are so many in the south. The infrastructure which government needs to plan in their master plan, that they should have places for health health sector or hospitals or these spas in and that is why we all see that in residential area a lot of nursing homes are there, and the main reason is that government never planned that for each locality there should be a place for healthcare, and then for a bigger locality there should be a bigger hospital plot. So all these recommendations we can actually give. This panel discussion. You all know that I was part of the NEET committee of MCI when we made all the rules, and with this next exam which is coming in, whatever we recommended, 95% of it would be implemented. Still 5% is remaining. We even recommended that you should only give grace marks for the reservation. For all the categories, you only give certain grace marks. You can give 10 grace marks to SCST, you can give 5 marks to Northeast, you can give 5 marks to the service doctor, so that there is no seat reservation. They will have to at least qualify to that level with a grace mark. It cannot be seat reservation. So that is the only thing which is remaining, and that will probably come when government is going to take some decision on reservations. Second, what Ajay was saying, where we are heading, dental college. Actually, before dental college, same thing happened to engineering colleges. That the problem in every nook and corner, there were so many engineers that all the salesmen were actually engineers. What happens is we don't, what I feel, whenever the policy is made, in the policy mainly they are bureaucrats, and the professionals which they take, they are mainly from the government bodies like Voluntary Institute or DGI. So they have no experience of public health things. Give you a very simple example. In England, in 1970s, there were mainly all the population was trained towards London. All the good medical colleges or hospitals were only in London. But slowly, every university hospital opened up in every I think area of England, and then this drainage stopped. And then what they did? English people, they merged 2 medical colleges into one, because they know that their numbers are going to go up tremendously. They don't need so many numbers, and we don't have such system here because we don't make policy like this. Now, what MP government has just started, the rotation into district hospitals. This is what we recommended in that when you do MBBS final exam, that exam should be centralized by the MCI. So that becomes the exit exam, that becomes your NEET PG exam. On basis of that, only you will be given admission. Now, every student would know that I am getting a PG or not. So, if they are getting a PG, you send them during the internship for 6 months into village. They will be more than happy. Why? They don't have to study for NEET exam, which they keep doing during the internship. अगर आप दूसरा देखें कि उनको 6 महीने सीखें, नेक्स्ट टू का एग्जाम दें और गांव भेज दीजिए, तो आपके गांव के डॉक्टर्स की प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। दूसरा, जब ये लोग पीजी करते हैं, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पे आप एक ही कॉलेज से पीजी करते हो। अक्रॉस द वर्ल्ड यू रोटेट इनटू डिफरेंट हॉस्पिटल्स, उससे आपको दूसरे डॉक्टर्स, दूसरे टीचर्स, दूसरी एक्सपोजर्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको तो जो टीचर मिल गया बस आप उतना ही सीख सकते हो। तो रोटेशन मस्ट है, तो इसीलिए अभी एमपी गवर्नमेंट ने शुरू किया। दिस वाज डिस्कस्ड विद देम एंड दे हैव इम्प्लीमेंटेड इट दैट ड्यूरिंग द पीजी ऑफ 3 इयर्स दे विल रोटेट पीजी स्टूडेंट एटलीस्ट 3 मंथ्स इनटू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी आपके डॉक्टर्स की कमी पूरी होगी। नाउ जब उसने 9 महीने का बिता दिए तो आप उसका बॉन्ड हटा दीजिए। ये जो बॉन्ड है 1 साल का, दिस इज एक्चुअली एंटी नेशनल एक्टिविटी। मैं इसको क्यों एंटी नेशनल कहता हूँ कि 100 लोगों का अगर हमारा क्लास होता है
तो उसमें से जो 30-40 लोग होते हैं वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो लोग आधे तो विदेश चले जाएंगे या बाकी के जो है बड़े-बड़े पीएमएमसीएच करेंगे, तो आप उनका एक साल बर्बाद करेंगे उन लोगों का। बहुत सारे लोग एक साल के लिए पोस्टिंग लेके आता है गांव में, आईएएस के यूपीएससी के एग्जाम के उसके लिए, ये बिल्कुल गलत चीज है। नाउ बट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दिस व्हेन वी हैव डन लॉट ऑफ पेपर वर्क एंड स्लोली ये बॉन्ड खत्म होना चाहिए। आपने एमडीएमएस करने के पहले ही कोई यूज कर लिया 9 महीने गांव, तो आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। If you would, if anyone would know much more about the Bhumi Vikas Niyam of Madhya Pradesh, still in Madhya Bhopal or in Madhya Pradesh, I can say, if in a residential area you want to open a hospital where a land use is residential, you can open a school, hospital or a hotel, but with a permission from the beginning that you are going to make a hospital. Now, as soon as you say that now you are going to make a hospital, then they will have another rule, set of rules. So it says that if you want to make a hospital in a residential area, you need to have 2 hectares of land, 5 acres. That's the rule. So who will have 5 acres of land in a residential prime area? So rather than area, they can talk about FAR. They can say that you should have minimum so much of area for a hospital, or they should lay down norms that at least you should have these facilities, these services, and so many rooms. These are the criteria. So all these are lacking. On the other hand, there is a one big lacuna which is left, which is there for nursing home. Nothing is laid down. You can open up nursing home in any प्लॉट साइज। अब अपन नंबर्स की बात पे आते हैं। एक क्या होता है, मेडिकल कॉलेज के 2 सेपरेट पार्ट्स हैं, एक पार्ट है कॉलेज, एक पार्ट है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल चाहिए पब्लिक को, कॉलेज चाहिए आपको डॉक्टर बनाने को। अगर ये जो एक मतलब डिसीजन जब करते हैं लोग कि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज बनाना, तो कहने को आसान है, लेकिन इन्होंने क्या डिफरेंशिएट नहीं किया कि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनाना, बस इतना करना। उनको मेडिकल कॉलेज नहीं बनाता। मेडिकल कॉलेज का जो पार्ट है दैट इज यूजलेस फॉर द पब्लिक। वो जो आप ऑडिटोरियम बनाते हो, जो आप ग्राउंड्स बनाते हो, जो आप लेक्चर थिएटर्स बनाते हो, जो फार्माकोलॉजी की लैब है, उससे पब्लिक को क्या फायदा है? उसको डॉक्टर बनाने के लिए चाहिए, वो आपके पास गांधी मेडिकल कॉलेज में है। जो हमारा बचपन का, जिसपे पूरा बचपन की था, वो चीजें कॉलेज में भूल जाते हैं। आप जब स्कूल में थे तो आपके क्या होते थे सेक्शंस, केजी 1 के सेक्शन, फर्स्ट के सेक्शन। हमारे मेडिकल कॉलेज में सेक्शंस क्यों नहीं होते? फर्स्ट ईयर का एबीसी, फर्स्ट ईयर एबीसी क्यों नहीं हो सकता? जब डॉक्टर सलीम होते चेयरमैन गवर्नर, तो मैंने उनसे ये पूछा था, साहब आप तो मुझको ये बता दो कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ सीट्स आप इतनी देते हो, इसका साइंटिफिक बेसिस क्या है? वो देवी शेट्टी उन लोगों ने 7 दिन स्टडी करके बोले कोई साइंटिफिक बेसिस, और तभी उनके टाइम पे जो 50% सीट डबल हुई थी, रातों रातों से इसीलिए होती। जब आप एक लेक्चर देने जाते हो अब्रॉड, वहां पे 5000 लोग आपको सुनते हैं, तो एक टीचर 150 लोगों के बियॉन्ड क्या आवाज ही आएगी उसकी। ठीक है, लेक्चर हॉल की अगर लिमिटेशन है तो आप सेक्शंस बना दीजिए, नहीं तो आप वर्चुअल क्लासेस 2 पैरेलल 2 लेक्चर थिएटर में चला लीजिए। आज की डेट में नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो एक हफ्ते में 4 घंटे से ज्यादा कोई नहीं पढ़ाता होगा। बाकी टाइम क्या करते हैं? क्लिनिकल वाले कम से कम क्लिनिक्स तो चलाते हैं, अस्पताल तो काम करते हैं। क्या पैरेलल क्लास चलाओ? साइकिल स्टफ ही है, वो जो आप लेक्चर दे रहे हो, वो लेक्चर वहां पे आ रहा है, आपकी फोटो है। बच्चों की एक्टिविटी होती है ना, नहीं मैडम, मैं क्या कह रहा हूँ, सिर्फ वो टीचिंग है हमारी, क्लासरूम टीचिंग, सिर्फ वो आपकी जो है डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। गांधी मेडिकल कॉलेज शुड बी द मेडिकल कॉलेज जिसमें 4 सेक्शन चल रहे हैं, और यहाँ के जब पीजीज बनेंगे तो सारे जो 8 आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो पीजी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल बन गए। आपकी नंबर ऑफ सीट डबल ट्रिपल 4 टाइम्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है वो टीचिंग मटेरियल पे देते हैं। अगर आपके पास टीचिंग मटेरियल डिस्ट्रिक्ट का ऐड हो गया ना, सारे डिस्ट्रिक्ट का 8 डिस्ट्रिक्ट का टीचिंग मटेरियल ऐड हो गया। then dean will not be able to control। नहीं
ये सिर्फ स्टेट लेवल पे होता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट को 2 में डिवाइड कर दिया जाता है। बाकी बताइए केंद्र में क्या है? मेडिकल एजुकेशन। ये सब बकवास है मैडम, ये सब पुराने जमाने का है। वी नीड टू डू लैटरल थिंकिंग, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। वर्ल्ड क्या कर रहा है, हम उसको हर जगह फॉलो कर रहे हैं। आप भी ड्रास्टिक चेंजेस लाइए, सब चीजें हो जाएंगी। पहले एक ही हेल्प था, मेडिकल एजुकेशन अलग है। क्या है अपने मेडिकल एडवांटेज आदमी ने Actually, dean should be the in charge of health of the whole division. Exactly. ये होना चाहिए। I remember when we were studying in when we were students, when I became a doctor, Dr. G.H. Sharma was the director of public health, जो कि पब्लिक हेल्थ को भी डील करते थे और मेडिकल डिपार्टमेंट। और आपका जो दूसरा कार्य है, आज आपका ख्याल बिल्कुल ठीक है। कितने टीचर हैं जो सच में पढ़ाते हैं? नहीं, अब मैं आपको टीचर का ही बताऊं। जब हम लोग MCI नहीं सर, मैं ये आपको यही बता रहा हूँ। और ये बेटा आप जो कह रहे हो ना, इसका भी आंसर दिया हुआ है। MCI इसको लेके आ रही है बहुत जल्दी। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं होते विजिटिंग टीचर? अच्छा, अब अभी अपन बात कर रहे थे नॉन क्लिनिकल, अब अपन बात करते हैं क्लिनिकल। हम क्लिनिकल में कितने लेक्चर्स लेते हैं? अपन लेक्चर तो 4 ही लेते हैं और 4 से पोस्ट ग्रेजुएट क्लिनिक करते हैं। अगर हम इन चीज के लिए तैयार हैं, अगर आप 8 घंटे जाने को तैयार हो एक हफ्ते में, तो why you should not be a postgraduate teacher? Yes. Why they are wasting a human resource? You are a national human resource. कोई जरूरत नहीं है। Waste कर रहे हैं। They don't need at all. I do agree. But only thing is कि आपके वेल होने से करने के लिए, तो आप जैसा कह रहे हो, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में जैसे इसी जमाने में 4 लेक्चर हुआ था, अब 17 लेक्चर डिपार्टमेंट मेडिसिन में। एक डिपार्टमेंट के 17 लेक्चर है। आपके मेडिसिन डिपार्टमेंट की जैसे चलते फाइनल की क्लास चल रही है, आप 4 सेक्शन क्यों नहीं बनाते? 4 लेक्चर एक करके यही तो मैं कह रहा हूँ। क्यों नहीं आप 50 ट्रांसपोर्ट के सेक्शन देते हो? दैट टाइम क्यों सब टीचर को इन्वॉल्व नहीं करते हो? 2 दिन पढ़ाने के बाद में बाकी 5 दिन वो नहीं करते, बाकी राउंड लेता रहता है, बाकी घर को घर क्लास पूरे पढ़ाएगा। तो आप पढ़ाने के लिए उनको जबरदस्ती आप उनको बोलिए कि आपको पढ़ाना है। इसलिए है कि अगर आप उनको नहीं फोर्स करोगे पढ़ाने के लिए, नहीं पढ़ाएगा। और अजय ने जो पॉइंट बोला था कि एक टाइम पे इतने ज्यादा नंबर्स हो जाएंगे, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि आपने आज 4 सेक्शन रखे, क्योंकि आज आपकी नीड है। कल आप उस 4 सेक्शन को 2 सेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, कम कर सकते हो। पर आपको क्या नहीं कम करना पड़ेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपने वेस्ट कर दिया कॉलेज बनाने के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो आपने हजारों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए। क्या होता है, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कि आपको टीचर को डेवलप करना है, उसको स्टिमुलेट करना पढ़ाने के लिए, ताकि उसके अंदर से बिल गार्डन को पढ़ाने की इच्छा रहे। आज आपने कितने बताइए कि नहीं किसको पढ़ाना इसे सच्ची चीज है। मैं चीज बोलूंगा कि आज की डेट में आदमी को पैसा भी चाहिए, उसको जॉब सेटिस्फेक्शन भी चाहिए, वो एकेडमिक्स भी करना चाहता है और वो गरीबों की भी सेवा करना चाहता है। उसको 4 चीज चाहिए। देयर इज नॉट अ सिंगल जॉब ऑफ गवर्नमेंट जो इन 4 को एक साथ फुलफिल करता है। नहीं करता। तो अगर आप उसको फ्री छोड़ दोगे, बोलोगे कि तुम सिर्फ पढ़ाने के लिए मेडिकल कॉलेज में आओगे गवर्नमेंट के, बाकी टाइम तुम पैसा बाहर कमाओ, तो सब लोग, क्योंकि बाकी 6 घंटे में बाहर पैसे कमाऊंगा। ये मॉडल इतना सिंपल है सर, जिसको ये नहीं करना चाहते उसका कारण सिर्फ एक है। I do agree. क्या है अपने बिल्कुल होता क्या ये तो बैठे सर BMHRC में तो हमने अप्लाई किया ना, तो हमने देखा कि वहाँ पे सब लोग टिके रहे। जिस दिन वो मॉडल हटाया सब चले गए। मैं एक बात और बोलता हूँ, आज की तारीख में जो मैंने देखा, जो मैं भी अभी भी पढ़ाता हूँ, कि लड़के इंटेलिजेंट हैं, परंतु उन्हें विश भी है पढ़ने की, विल भी है, पर पढ़ाने वाला चाहिए नहीं। उनको स्टूडेंट पढ़ाओ तो आप देखता हूँ, मेरे पास मैं डिनर देता हूँ, मेरे पास लड़के पता है कहीं भी और जाते हैं, दूसरी जगह में जाइए। अब मेडिकल कॉलेज भोपाल में एक ऐसा नहीं कि पढ़ाने वाले टीचर नहीं, तो नहीं जाते हैं, जो स्टूडेंट जाते हैं, परंतु आपको एक वो स्टूडेंट तो दो, जो तो पढ़ाओ, तो आगे तो पढ़ाओ। ये परंतु आप उनको रिस्ट्रिक्ट करके रखे हो। दूसरा एक चीज मैं कहता हूँ कि प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस में चाहे कोई भी प्रोसीजर या कोई भी मेथडोलॉजी, जैसे भी डॉक्टर गोविंद का एक NAPH हो गया, एक ये हो गया, आप 2500 विंडो खोल के रखिए डॉक्टर के लिए,
तो डॉक्टर तो आता तो टेंशन में खत्म हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल। पहला काम अगर करना है सरकार तो यू शुड मेक डॉक्टर फ्री फ्रॉम द टेंशन। वो अपने एमबीबीएस की खिड़की पर जाके अपने अस्पताल को रेफर करे या मरीज को रेफर करे। बिल्कुल आपको समझ नहीं देते। बिल्कुल। दूसरा अजय, यू विल अग्री टू मी आफ्टर सम टाइम, वैसे तुम्हें इनसाइट मालूम है अंदर क्या क्या चल रहा है। धीरे धीरे सरकार जो है पूरा प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है। एक तरफ इंश्योरेंस करेगी, यूनिवर्सल हेल्थ केयर लाएगी, पूरी पॉपुलेशन को इंश्योर कर देगी, और इसको या तो सरकार खुद अभी जैसे चला रही है गलत, या फिर उसको किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को या किसी को दे देगी, तो आपकी पूरी पॉपुलेशन इंश्योर हो जाएगी। और उसके बाद धीरे धीरे दे आर गोइंग टू प्राइवेटाइज ईच एंड एवरी हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज। ये मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर ये सरकार 10 साल और रही, यू विल सी दिस चेंज, बिकॉज वो लोग फिर देखिए, गवर्नमेंट से आप सर्विस की आशा कर ही नहीं सकते। तो गवर्नमेंट इज नॉट देयर टू डू द सर्विस इंडस्ट्री, दे आर ओनली देयर टू डू सुपरविजन एंड पॉलिसी। तो इनको हाथ झाड़ लेना चाहिए सारे हॉस्पिटल से, और ये सब प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। देखिए, पूरी पैथोलॉजी प्राइवेटाइज हो गई स्टेट की, पूरी रेडियोलॉजी प्राइवेटाइज हो गई, अभी सारे न्यूरो ये आपके ट्रॉमा सेंटर्स हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का प्राइवेटाइज होने वाला है, कार्डियक सेंटर्स होने वाले हैं, उसके बाद सुपर स्पेशलिटी विंग होने वाला है। पेशेंट डिलीवरी तो ठीक है, लेकिन टीचिंग में आई शुड नॉट कमेंट फॉर द प्राइवेट कॉलेजेस। आई हैव सीन बोथ कॉलेजेस। जो क्वालिटी ऑफ टीचर गवर्नमेंट में है, आई थिंक इट इज़ फार बेटर देन द प्राइवेट। क्योंकि क्या होता है, छोटे छोटे क्लिनिक से ले आते हैं जो खोलते हैं ना मोहल्ले वगैरह में, और असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। जब उनसे कहते हैं कि आप बच्चे को ये पढ़ाई के, तो हम तो वो मटीरियल नहीं देंगे, तो फिर कैसे होगा? तो यस, जब आप एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को, अगर अजय तुमको 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अटैच कर दिए जाएं, तो तुम्हारे पास क्लिनिकल मटेरियल की कमी रहेगी कभी? नहीं, नॉट द मटेरियल, क्लिनिकल मटेरियल होगा, टीचर टीचिंग मटेरियल। अगर आप टीचर को फुल टाइम टीचर बनाओगे नॉन प्रैक्टिसिंग, तो नहीं मिलेगा। यही तो मैं कह रहा हूँ। आप विजिटिंग एमसीए ला रही है, 33% का रूल लाई है अभी, उसको 50% करेगी वो, कि 50% ऑफ द रिक्वायरमेंट यू कैन फुलफिल बाय द विजिटिंग फैकल्टी। ये आने वाला और फैकल्टी होना चाहिए, नुकसान क्या है? सर कोई नहीं है, ये तो जबरदस्ती का रूल है। इवन इन बॉम्बे यूनिवर्सिटी में तो क्या यूनिवर्सिटी के टीचर एम्प्लॉय होते हैं, वो ऐसा नहीं है कुछ फायदा। बॉम्बे हॉस्पिटल में काम करने वाला जो निकलना है टीचर बॉम्बे यूनिवर्सिटी, वो पढ़ाने जाता है, टीचिंग के यही तो मैं कह रहा हूं सर, वी आर बेसिकली ह्यूमन रिसोर्सेज। जो है गवर्नमेंट में पॉलिटिक्स के अंदर आना चाहिए कि हमें करना है। दे आर प्लेइंग विद द अदर वो इसलिए है that aging population in Bhopal is increasing. Here we have mainly people from service class, students and retired people, rather than business people. So the health services which should be available should be able to cater to them, the economic wise also and specialty wise also. So what we need is more of geriatric services also, which is lacking in Bhopal. Neuro rehab, because as they age, a lot of neurological problems set in, Parkinson's or paralysis or any things are there. You would be amazed that in whole of Bhopal, the so-called home care companies which have started, but they are totally non-professional. If you go to metros, the big hospitals, Fortis, Max, Medanta, everyone has got now a vertical of home care. So there, it's a very professionally done. So you will have specialists taking care at home, specialist nurses, specialist attendant. Because if there is a person of Parkinson's, a normal attendant or a nurse cannot cater, because there is rigidity. So they can't just lift them fast. They will have to really do very slowly with them. So all these things, I think, should now be available with us also. One more thing which is not available is this high-ended old people's home. Now this old people's home can not only be for normal old people, but also when some problems, medical problems are also there with them, either neuro or cardiac or something. So that was one more. Hospice, we don't have hospice
we are going to have Indian medical system also, at least the OPDs in our hospital. So once the diagnosis has been made by allopathic test, we know the diagnosis, we know the stage, we have figures with us. Then for certain diseases where we know that allopathy is just treating, it's not curing, then we can discuss with the patient that whether you would like to seek an alternative medicine approach also. Then they can be treated by the Indian medical system, but they will be followed up and getting tested by allopathic diagnostics. So that over a period of time we will have a lot of documents that how yoga works on blood pressure, how on the arthritis, a lot of Ayurvedic products would work. So this was one of the ideas which I thought. Then we have started using a term healthcare industry. Hospitals are no more charitable, they are industry, they are commercial now. But then why don't they get subsidy as per industry? The only subsidy which in Madhya Pradesh is given for a super specialty hospital which is more than 100 beds, so it can be 300 beds, which means it's a 300 crore project, you get maximum 5 crore rupees as one-time subsidy. But at the same time, for the industry, you will get 40% subsidy over a period of 4 years. So there are no good promotional policies for people to put up healthcare. And then it becomes very expensive, and therefore healthcare also becomes expensive. Because if you give a subsidy and then government can always say that no, you need to have 5% or 10% of the beds compulsorily for Ayushman at Ayushman rate. So then even if a person doesn't have an Ayushman, at least at those cheap rates, he will get a treatment. So I think such policies we should promote, we should advise them, and let's see if things happen. PPP model, in Bhopal there are very few PPP models which have come up, but in health they have just started, mainly for diagnostics, like CT scans, MRIs, they are being put in all districts on a PPP model. Now they are going to put mammography machines. So hospitals should also be probably given on a PPP model, because one of the major expenditure on hospital is the land and building. So if we want cheaper treatment for common people, then government should have some policy where government buildings can be given on a PPP model to private parties, and they can put up a hospital in that building and run it. And as I said, because we are city mainly of service class, retired people and students, therefore we need a slightly different financial model for our healthcare system. Not commercial like Indore. Indore is different from Bhopal. This scheme was started in 2018 to cover 10 crores of families, which means around 40 crore population, and they were given a cover of 5 lakh rupees per family per year. Now this is not a Medicare, first of all. We have to understand what is different. इसमें हर एक्टिविटी का एक प्राइस फिक्स है, ना आप उससे ज्यादा ले सकते हो ना कम ले सकते हो। दूसरी सारी एक्टिविटीज नहीं है, आपको मलेरिया हो गया या कुछ भी हो गया तो ऐसा नहीं है कि मलेरिया के लिए चीज है, एंडोस्कोपी ओपीडीज नहीं है, ओपीडी के इन्वेस्टिगेशंस नहीं है, तो लिमिटेशंस इसमें बहुत सारी है व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। नेक्स्ट, हाँ इसमें एक चीज जरूर थी कि इसमें 60% फंडिंग सेंटर की है, 40% स्टेट की है, लेकिन सेंटर ने फ्री हैंड दिया था हर स्टेट गवर्नमेंट को कि वो जैसे भी चलाना चाहे, वो खुद चलाना चाहे, वो टोटल इंश्योरेंस कंपनी में देना चाहती है, वो ट्रस्ट फॉर्म करके करना चाहती है, जैसे चाहे चलाए। 1 and 2 up to 15% rates they can increase or decrease, it is up to the state। 15% रेट का मार्जिन हर स्टेट को दिया है, तो जो प्रोग्रेसिव स्टेट्स हैं वो ज्यादा कर देते हैं, जो नहीं है वो नहीं कम करते हैं। उसमें एक टारगेट ग्रुप था एंड इट वाज बेसिकली बेस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ऑफ 2011
तो अगर आप 2011 में लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में हो तभी आप आयुष्मान में आ सकते हो, नहीं तो नहीं। और ये सब जो है इनमें से आप कोई भी हो तो वो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है। यदि आपके पास गाड़ी है, टैक्स भर रहे हो, 10,000 रुपए से ज्यादा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, रिटायर्ड हो आप, तो ये 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है तो यू आर एक्सक्लूडेड। नेक्स्ट, रेट जो है इनके फिक्स्ड है, पैकेजेस हैं मेनली। इसमें मेडिकल जैसे सीजीएचएस में मेडिकल में होता है कि बेड के चार्जेस फिक्स्ड है, कंसल्टेंट के फिक्स्ड है, और दवाइयाँ एज पर एक्चुअल्स, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, डायग्नोस्टिक, ट्रीटमेंट, डॉक्टर, बेड, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। पैकेजेस में सब चीजें कवर नहीं होती हैं। देयर आर ओनली 1641 पैकेजेस। मेनी ऑफ द पैकेजेस आर रिजर्व्ड ओनली फॉर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड पैकेजेस रेट्स आर वेरी लो, मेनली फॉर जनरल सर्जिकल स्पेशलिटीज एंड मेडिकल मैनेजमेंट। अच्छी चीज ये है कि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी अप्लाई की हुई है इन लोगों ने। एवरीथिंग इज डन ऑनलाइन, एवरीथिंग अप्रूवल्स भी ऑनलाइन आते हैं और पेपर्स भी अपलोड ऑनलाइन होते हैं और पैसे भी ऑनलाइन आते हैं, आपको लेने नहीं जाना पड़ता। पेशेंट का जो ट्रीटमेंट होता है उसके कई पार्ट्स हैं। सबसे पहले वो अंगूठा लगा के अप्रूवल आता है एडमिशन के लिए, फिर जो आप उसका ट्रीटमेंट या प्रोसीजर करने वाले हो आप उसका अप्रूवल लेते हो, उसके बाद जब आप डिस्चार्ज करते हो तो उसका अप्रूवल होता है। और इस बीच में पेपर्स रेगुलरली, रिपोर्ट्स एंड डेली रिपोर्ट्स आर टू बी अपलोडेड रूटीनली, हर एक 2-2 दिन के गैप में। डिस्चार्ज होने के बाद आप बिल जो है ऑनलाइन सबमिट कर देते हो। जब बिल ऑनलाइन सबमिट हो गया उसके बाद वो वहां पे एक रिव्यू प्रोसेस है जो वी विल डिस्कस कि उस रिव्यू प्रोसेस कितनी लंबी है और उसमें कहां पे कितनी कमियां हैं। तो अब अपन शॉर्टफॉल्स 2 तरह के हैं, एक तो इनहेरेंट इन द पॉलिसी और एक है शॉर्टफॉल्स बिकॉज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। तो इनहेरेंट में जो पॉइंट्स है मेनली जो मुझे दिखे कि पैकेज रेट्स बहुत कम है, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का है। अब उसके बाद कितने लोग हैं जो अमीर हो गए हैं इनमें से, वो भी आज उसमें है क्योंकि इसमें लूप बहुत हैं। और अगर आप आयुष्मान की साइट पे जाओगे, लेसन्स लर्न जो सरकारी है, तो उसमें फ्रॉड इज अ वेरी मेजर थिंग जो वो खुद एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, इसमें आप मरीज पैकेज है, अब वही पेशेंट में आप लैब कूली कर रहे हो और उसी पेशेंट को मालूम पड़ा कि डायबिटीज भी है, कार्डियक फेलियर भी है, पेसमेकर भी लगा हुआ है, रेट से मिलेगा आपको, रेट से मिलेगा, भले वो 2 दिन रुके, 6 दिन रुके, 7 या 10 दिन का पैकेज है, आपको एक ही। दिस इज एब्सर्ड थिंग्स जो वो करते हैं। तो ये लोग कोमॉर्बिडिटीज को टेक केयर नहीं कंसीडर करते हैं। मल्टीपल मोडालिटीज करना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। अगर किसी पेशेंट में 2 प्रोसीजर होने हैं मेडिकल, पहले आप उनको, जैसे कोलिंजाइटिस में जॉन्डिस विद गॉलस्टोन्स एंड सीबीडी स्टोन आया, तो वो आपको सिर्फ 2 चीजें देने वाले हैं, लैबकोली और ईआरसीपी फिक्स। जबकि उसे 5 दिन तो आपको वो करना पड़ेगा मेडिकली मैनेज, जिसके लिए वो कुछ नहीं आपको देने वाले। ओपीडी है ही नहीं, इन्वेस्टिगेशंस नहीं है। अब एंजियोग्राफी के पैसे नहीं देते जब तक एंजियोग्राफी में मालूम ही नहीं पड़ेगा कि उसको कोई प्रॉब्लम है। बोलते हैं हम स्टेंट के पैसे देंगे, बाईपास के देंगे, पर एंजियोग्राफी के नहीं देंगे, एंडोस्कोपी के नहीं देंगे, पर हाँ अगर कैंसर है इसोफेगस का तो स्टेंट के दे देंगे। तो ये बेसिक फैल्सीज है। और मालूम पड़ा एंजियोग्राफी करने में उसके 10,000 रुपए 8,000 रुपए खर्च हो गए, गरीब के लिए वही बहुत है, इतने में तो वो पॉलिसी ले लेता। एक जो बात हो रही थी, कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए जो लोग आयुष्मान योजना से कर रहे हैं, तो या तो उनको चीपर रेट्स पे डिवाइसेस मिले, और या फिर अब तो कहते हैं कि वो जो जितना भी आप काम कर रहे हो आयुष्मान का, दैट अमाउंट शुड बिकम टैक्स फ्री, क्योंकि ये अज्यूम करके कर रहे हो दिस इज चैरिटी। सो दिस शुड नॉट बी इंक्लूडेड इनटू द इनकम। आपने जितना भी ये किया वो आपकी इनकम, इसमें इनकम में, रेवेन्यू में नहीं जुड़ना चाहिए। I will talk on a topic which could be futuristic because government ने कुछ steps तो ले लिए हैं उस फील्ड में, वो सक्सेसफुल भी रहे हैं, और हो सकता है कि गवर्नमेंट का यदि विल पावर रहा तो वो शायद उसको यूनिवर्सल उसमें अप्लाई कर सकती भी है और चाहे तो करेगी भी। ये है पीपीपी मॉडल। इस पीपीपी मॉडल is future of healthcare in India. This is just a food for thought for everyone. Next.
PPP मॉडल क्या होता है? इट इज़ पार्टनरशिप बिटवीन अ प्राइवेट प्लेयर एंड अ गवर्नमेंट सेक्टर, एंड वी डिलीवर सम पब्लिक सर्विस। तो इसमें प्राइवेट जो पार्टनर होता है वो पूरा फिनेंशियल उसके पास बर्डन आएगा, पूरा टेक्निकल एंड ऑपरेशनल ये पार्ट ज़्यादातर प्राइवेट पार्टनर करता है। और इंडिया में इन 2004 इट वाज द फर्स्ट PPP मॉडल वेयर SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर दे हैव पुट अ CT scan and MRI as a PPP model in government sector. That was the first time in India. Next. So you can have several types of PPP model. One is where it is like build and operate. So the private player will also do the construction and will also run the show, equip it and run. In other model, you can only be doing the clinical services, provide clinical services. So you do basically operation and management, but you also put the equipment. And then you can have an integrated thing where you do everything. Next. So एक thought है गवर्नमेंट का जिस पे they have already started working, policy formation चल रही है, काफ़ी thought processes, brainstorming हो रही है दिल्ली में, and it is that we have to provide universal health care to all citizens of India, which means they will give you a minimum health guarantee to everyone. अभी जो आयुष्मान योजना है उसको धीरे धीरे आप देख रहे होंगे एक्सपेंड होगा, पहले 40 करोड़ लाभार्थी थे, फिर 60 करोड़ हुए हैं, अभी 70+ को डाल रहे हैं, बाद में सारे पेंशनर्स उसमें आने वाले हैं, CGHS, ECHS, ESI सब उसमें धीरे धीरे मर्ज करते जाएंगे. सो इवेंचुअली दे वांट टू गिव इट टू एवरीवन, फ्रॉम प्रधानमंत्री टू ठेले वाला, एवरीवन विल हैव आयुष्मान. सो एवरीवन विल बी गिवन 5 लाख फैमिली फ्लोटर हेल्थ मिनिमम पॉलिसी. नाउ दिस ये तो ये लोग अचीव कर लेंगे, पर अभी अगर ये कर रहे हैं तो इसका सारा खर्चा एक्चुअली सरकार खुद अपने ही सिस्टम के थ्रू मैनेज करती है. वो या तो ट्रस्ट सिस्टम बनाती है या कहीं पे खुद स्टेट गवर्नमेंट करती है पेमेंट्स एंड जो अप्रूवल्स होते हैं. लेकिन इसका एक मॉडल जो सबके उन लोगों ने शुरू किया है, दे हैव स्टार्टेड टेकिंग कोटेशंस फ्रॉम मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज एंड दे आर हैविंग लॉट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग विद देम, कि गवर्नमेंट सिर्फ एक ही काम करेगी कि 5 लाख फैमिली फ्लोटर का एक प्रीमियम भर देगी. मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज से टेंडर लिया, अलग अलग स्टेट्स को या जैसे भी डिवीजन हो, दे कैन जस्ट गिव द प्रीमियम एंड देन गवर्नमेंट इज ऑफ हेल्थ. उन्होंने सबको इंश्योर कर दिया है. नाउ सबके पास एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, भली बहुत छोटी है बट एक पॉलिसी है. अब आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप केपेबल हैं, आप उसी इंश्योरेंस कंपनी में टॉपअप ले लीजिए कि भाई आयुष्मान में अगर मैं बाईपास कराता हूं तो 1,38,000 रुपये मिलते हैं आयुष्मान से, लेकिन मेरे को कराने मेदांता में, और वो भी डीलक्स वार्ड में, क्योंकि मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ. तो मैं वहाँ जाके कराऊंगा, वहाँ पे 5 लाख रुपए का बिल आएगा, 1,38,000 हमारी आयुष्मान पॉलिसी से आएगा, बाकी का मेरे टॉपअप पॉलिसी से आएगा या मैं जेब से भरूंगा. सो दिस इज व्हाट हैपन्स अक्रॉस द वर्ल्ड ऑल्सो. वर्ल्ड में कई कंट्रीज इस मॉडल पे भी काम करते हैं. इंडिया इसमें सोचने लगी है, अब कितनी सक्सेसफुल होगी कह नहीं सकते. तो एक तरीके से गवर्नमेंट सिर्फ प्रीमियम देगी, सब सिटीजन्स को इंश्योर करेगी, और हम जैसे अपन लोग अभी मेडिकल इंश्योरेंस से इलाज कराते हैं उसी तरीके से अपन इलाज कराते रहेंगे. नाउ इफ दिस इज हैपनिंग, तो जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट का काम फिर गवर्नेंस, पॉलिसीज एंड सर्विलेंस, बस ये रह जाएगा. और बाकी जो कुछ इंश्योरेंस कंपनी का तो काम ही है, वो तो यही कर रही हैं, अभी भी इलाज करते हैं तो वो ऑडिट करती हैं, उनको अच्छे से इंस्पेक्ट करते हैं बिल्स को, और कोशिश करते हैं कि कितने कम से कम में काम हो जाए. तो वो काम ऑलरेडी कर ही रही हैं इंश्योरेंस कंपनीज. नेक्स्ट. तो इससे हमारा क्या क्या बच जाएगा, इससे जो कुछ भी सरकार को हेल्थ बजट देना पड़ता है फॉर क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि हॉस्पिटल बनाना है या अपॉइंटमेंट्स करने हैं, इक्विपमेंट्स खरीदने हैं, उनकी रिपेयर्स हैं, कंज्यूमेबल्स हैं, मेडिसिन्स हैं, पेंशन्स हैं, ऑल दिस बजट यू डोंट नीड देन. आपको सिर्फ प्रीमियम भरना है.
और इफ़ेक्टिवली अगर देखा जाए तो सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल जो हैं वो बहुत इजीली आउटसोर्स हो सकते हैं। इसमें 4 तरह की सर्विसेज होती हैं हेल्थ में: प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी, टर्शरी एंड टीचिंग एंड रिसर्च। तो इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर जो गांव लेवल तक है, जो तालुका लेवल तक है, वो ज़रूर सरकार को अपने पास अभी रखनी पड़ेगी, और जो टीचिंग और रिसर्च है उसमें भी गवर्नमेंट को अपना हस्तक्षेप रखना पड़ेगा। पर सेकेंडरी हेल्थ केयर एंड टर्शरी हेल्थ केयर बहुत इजीली आउटसोर्स हो सकती है पीपीपी मॉडल पे। अभी जो एमपी कर चुका है, एमपी ने सारी पैथोलॉजी सर्विसेज इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, ऑल मेडिकल कॉलेजेस एंड ऑल CHCs वो आउटसोर्स कर चुकी है। सारी की सारी पैथोलॉजी एमपी स्टेट की आउटसोर्स्ड है। सारे के सारे सीटी और MRI डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आउटसोर्स, सारे डायलिसिस आउटसोर्स हो चुके हैं प्राइवेट पीपीपी मॉडल पे, किचन्स आउटसोर्स हो रहे हैं, लॉन्ड्री आउटसोर्स हो रही है। ये सब ऑलरेडी टेस्ट कर लिया एमपी गवर्नमेंट ने एंड दे हैव फाउंड दैट यस इट इज सक्सेसफुल। अब फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव कम आउट विद अ टेंडर फॉर द कार्डियक सर्विसेज इन भोपाल डिस्ट्रिक्ट, जिसमें पीपीपी मॉडल पे जो नई बिल्डिंग बन रही है जेपी हॉस्पिटल में, उसमें 1.5 फ्लोर देकर प्राइवेट प्लेयर विल रन द शो। सो इफ दैट बिकम सक्सेसफुल, उनका फिर प्लान है कि न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर्स धीरे धीरे करके सुपर स्पेशलिटी एंड लेटर ऑन ऑल सर्विसेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड सिविल हॉस्पिटल्स कैन बी आउटसोर्स्ड ऑन पीपीपी मॉडल। एंड वी ऑल नो कि हेल्थ अभी जितना भी सरकार का सेटअप है हेल्थ का, वो सिर्फ 20% लोगों को प्रोवाइड कर पा रहा है हेल्थ, बाकी 80% ऑलरेडी प्राइवेट ही प्रोवाइड कर रहा है हेल्थ केयर। तो वो 20% भी जब प्राइवेट के पास जाएगा, रेट्स तो फिक्स्ड है, आयुष्मान के रेट फिक्स्ड हैं, तो इसीलिए प्राइवेट प्लेयर चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगा उन जो गरीब मरीज हैं उनको इलाज देने में। लेकिन फ़ायदा क्या होगा, प्राइवेट प्लेयर विल ऑलवेज मेक श्योर कि हाँ CT स्कैन मशीन चालू है, MRI मशीन चालू है, पैथोलॉजी चालू है, इलाज होगा। सरकारी अस्पताल भले ही फ्री है, पर वहाँ अगर वो मशीन खराब है, दे डोंट बॉदर, महीनों तक खराब पड़ी रहती है। सो दिस इज अ फूड फॉर थॉट कि हो सकता है इन फ्यूचर बाय 2047 lot of healthcare in India will go on a PPP model, and that it will improve definitely the quality of healthcare services.